It's a very welcome to all of you, and this video is going to be created for the class 9th. Okay, in class 9th we are going to create this video for the chapter 2. Okay, we have already prepared the chapter 1 in matter in our surrounding. Okay, if you didn't watch this video, you can check out the playlist of the class 9. Okay, and today we are going to start our chapter 2nd. Chapter 2nd name is matter around us pure. Okay, now these both chapter 1st and chapter 2nd, these both chapter are connected to each other. Okay, so first chapter, matter in our surrounding. We have already studied about the matter, how many types of the matter are there, and how many types of the state of the matters are there in chapter first. Okay, now in chapter 2nd we will study about the composition of the matters. Okay, type of the matter on the basis of the composition and number of the particle based. Okay, so in chapter 2nd, today we are going to start chapter 2nd. Name is matter around us pure. Okay, so one by one we will discuss all the topic related with the is matter around us pure. Is this a question or a chapter? Sometimes it's very confusing. Is matter around us pure? Okay, is matter around us pure means all the matters who are actually existed in our surrounding, and these may be the single kind of particle or they are made up of the different type of particles. Okay, so this is also a question mark about the chapter. Is matter around us pure or not? Okay, so we will study about the matters in this chapter, and let's start one by one all the topics. Okay, first of all, matter. We know about the definition of the matter. Okay, all the substances which having the mass and occupy some space, they actually known as matter. Okay, we have already studied about this. So मैटर्स की अगर हम बात करें, मैटर्स के बारे में सारे ही मैटर्स क्या होते हैं, यानी कि हमारे सराउंडिंग में जितनी भी सारी चीजें हैं, जितनी भी सारी चीजें, यहाँ की हम मार्कर की भी बात करेंगे तो इस मार्कर का भी कुछ ना कुछ मास है. ठीक है, इट हैविंग द मास और डेफिनेटली इट कैन ऑक्यूपाई सम स्पेस, सो वी कैन से दैट मार्कर इज आल्सो अ मैटर. ठीक है, तो मैटर जो होता है हर एक सारी चीज को कहते हैं जिसमें कि मास होता है और उसमें कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करने की टेंडेंसी होती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपली मैटर बोल देते हैं. ठीक है, अब ये जो मैटर्स होते हैं, मैटर को क्लासिफाई किया गया है कि मैटर्स होते कितने टाइप के हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन. ठीक है, तो कंपोजिशन के बेस पे मैटर्स को हमने मोस्टली दो टाइप में कैटेगराइज किया है. ठीक है, कौन कौन से, तो कुछ मैं आपको विजुअलाइज करके दिखाऊंगा और जहां पे मुझे मार्कर की जरूरत पड़ेगी मैं वहां पे मार्कर का यूज करूंगा. ओके, सो मैटर्स की अगर बात करेंगे तो सबसे पहले जो मैटर्स होते हैं, दीज आर एक्चुअली टू टाइप्स ऑफ मैटर. ओके, प्योर सब्सटेंसेस एंड इम्प्योर सब्सटेंसेस. प्योर सब्सटेंसेस में क्या होता है और इम्प्योर सब्सटेंसेस में क्या होता है, हम लोग वो देखते हैं सबसे पहले. So pure substance की अगर हम बात करेंगे, so pure substances are those substances in which all the containing particles, all the constituent particles are similar. ठीक है, यानी कि ऐसे सारे substances जिसमें कि सिर्फ एक ही टाइप के particles होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, pure substance बोलते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं. जैसे कि अब मैं थोड़ा मार्कर का यूज करना चाहूंगा. हमारे पास क्या है कि कोई एक मैटर है, मैटर मतलब कोई भी एक सब्सटेंस है. ओके, सिंपल सी लैंग्वेज में हम ये कह सकते हैं कि कोई सब्सटेंस है, एक पीस है किसी का, और इसमें एटम्स होंगे, जाहिर सी बात है पार्टिकल्स होंगे. तो अगर कोई मैटर ऐसा प्रेजेंट है जिसमें कि सारे ही पार्टिकल्स क्या है, सिमिलर टाइप के हैं, और उसमें कोई भी पार्टिकल का प्रॉपर्टी जो हो, केमिकल प्रॉपर्टी हो चाहे फिजिकल प्रॉपर्टी हो, वो सारी प्रॉपर्टीज क्या हो, सिमिलर हो, तो ऐसे मैटर को हम लोग बोल देते हैं प्योर सब्सटेंस. ओके, so we can identify the pure substance by the nature of constituent particles. okay, तो इतने सारे ऐसे सारे ही मैटर्स जिसमें क्या होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का मतलब कि जिससे मैटर बना हुआ है, तो अगर वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल सारे ही एक ही साइज, शेप, साइज, कलर के हैं, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, प्योर सब्सटेंस. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अबाउट द प्योर सब्सटेंस टाइप. ओके, अभी प्योर सब्सटेंस को हमने डेफिनेशन के थ्रू सुन लिया कि भाई प्योर सब्सटेंस होता है जिसमें कि सिर्फ एक ही टाइप के पार्टिकल्स होते हैं. अब अगर हम थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज की बेस पे देखें तो प्योर सब्सटेंसेस को हम कैसे अपनी डेली लाइफ में देखते हैं. प्योर सब्सटेंस की अगर बात करें तो प्योर सब्सटेंसेस में दो चीजें आती है, एलिमेंट एंड कंपाउंड. ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एलिमेंट्स. एलिमेंट्स आर आल्सो द प्योर सब्सटेंसेस. व्हाई दीज आर कॉल्ड प्योर सब्सटेंसेस? बिकॉज एलिमेंट मींस मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड. ठीक है, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट दीस सब्सटेंसेस इन क्लास 8. ओके, क्लास 8 में हम लोगों ने मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड के बारे में पढ़ा हुआ है. तो मेटल हो चाहे नॉन मेटल हो चाहे मेटलॉइड हो, इन सभी में क्या होता है कि सारे ही जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वो सारे ही छोटे छोटे पार्टिकल्स क्या होते हैं, एक ही टाइप के होते हैं. तो जब एक ही टाइप के पार्टिकल होंगे तो उस सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलेंगे,
प्योर सब्सटेंस बोलेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपके पास क्या है कि एक आयरन नेल है, ठीक है। आयरन नेल में क्या होता है कि सारे ही जो एटम होंगे या पार्टिकल होंगे, आयरन नेल क्या होगी, छोटे छोटे पार्टिकल से बनी होगी। जब छोटे छोटे पार्टिकल आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो क्या बनता है, कोई सब्सटेंस बनता है, ठीक है। तो वो सब्सटेंस अगर सिर्फ एक ही टाइप के पार्टिकल से बना है तो उसको हम प्योर सब्सटेंस बोलेंगे, ठीक है। तो जैसे कि जो आयरन नेल होती है हमारी, तो आयरन नेल में क्या होता है कि सिर्फ आयरन के ही पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। आयरन के पार्टिकल्स को छोड़ करके इसमें कोई भी पार्टिकल प्रेजेंट नहीं होता है। तो ऐसे इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी मेटल्स होते हैं दीज आर द प्योर सब्सटेंस, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कोई भी एलिमेंट ले ले, चाहे आप कोई मेटल ले लें, चाहे कोई आप नॉन मेटल ले लें, चाहे कोई मेटलॉइड ले लें, ये सभी कैसे होते हैं, प्योर सब्सटेंस बोले जाते हैं, क्योंकि इन सभी में एक ही टाइप के पार्टिकल होते हैं। उन सभी पार्टिकल का साइज भी एक होता है, सभी पार्टिकल का कलर भी एक होता है, सभी पार्टिकल्स की स्टेट भी सेम होती है। तो ये कह सकते हैं कि सभी पार्टिकल की प्रॉपर्टी सेम होती है, इसीलिए वो क्या बोले जाते हैं, प्योर सब्सटेंस बोले जाते हैं, ठीक है। दूसरे टाइप के जो प्योर सब्सटेंस होते हैं हमारे, वो होते हैं कंपाउंड्स। अब ये कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड्स आर दो सब्सटेंसेस व्हिच आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट, ठीक है। यानी कि जब दो टाइप के एलिमेंट्स आपस में रिएक्शन कर जाते हैं और उनकी रिएक्शन से कुछ ऐसी स्पीसीज बनती है जिसकी प्रॉपर्टी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी से डिफरेंट होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। तो कंपाउंड्स आल्सो आर द टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस, ओके। एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं, जैसे कि H2NO2 अगर रिएक्ट करेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि हमने कहा कि H2NO2 अगर रिएक्शन करता है तो उससे क्या बनता है, H2O बनता है, ठीक है। अब H2NO2 दीज आर द एलिमेंट्स, ये क्या है, एलिमेंट्स है। और इससे एलिमेंट्स की रिएक्शन से क्या बनता है, कंपाउंड बनता है, ठीक है। तो हमने ये देखा कि अगर हम वाटर लेते हैं, अपने पास ग्लास में वाटर लेते हैं, तो जो प्योर वाटर होता है उसकी खास बात क्या होती है कि उसके अंदर जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं वो सब किसके पार्टिकल होंगे, सारे ही सारे किसके वाटर होंगे, किसके पार्टिकल होंगे, वाटर के ही पार्टिकल होंगे। और इन सभी वाटर के पार्टिकल का जो प्रॉपर्टी होगा, यानी कि कलर, डेंसिटी और शेप एंड साइज, मास, ये सब चीजें क्या होंगी, सिमिलर होंगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि कंपाउंड्स आर आल्सो द एग्जांपल ऑफ प्योर सब्सटेंस, ओके। सो नेक्स्ट मूव करते हैं। प्योर सब्सटेंस के बाद हम लोग आते हैं इम्प्योर सब्सटेंस पे। इम्प्योर सब्सटेंसेस क्या होता है, इम्प्योर सब्सटेंसेस वो होते हैं जिसमें कि एक से ज्यादा, जब दो या दो से ज्यादा कोई चीजें आपस में मिक्स कर दी जाती हैं तो फिर उस मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। जैसे कि आपने वाटर में चॉक ऐड कर दी, वाटर में कुछ और ऐड कर दिया, मतलब जब दो चीजों को मिक्स कर देते हैं तो मिक्स करने के बाद जो मिक्सचर बनता है इसी को हम लोग बोलते हैं इम्प्योर सब्सटेंस, ओके। नाउ द इम्प्योर सब्सटेंसेस आर फर्दर क्लासिफाइड इन टू कैटेगरीज, ओके। होमोजेनस सब्सटेंसेस एंड हेटेरोजेनस सब्सटेंसेस, ओके। होमोजेनस मिक्सचर और हेटेरोजेनस मिक्सचर, इनको कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। होमोजेनस मिक्सचर मींस जो चीजें आपने मिक्स की हैं, जैसे कि मान लो आपने सैंड को वाटर में मिक्स किया है या फिर शुगर को वाटर में मिक्स किया है, तो उनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग है। इसकी प्रॉपर्टी के बेस पे ही इनको टू कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया। जैसे एग्जांपल, हम क्या करते हैं कि जो कॉमन सॉल्ट है, व्हेन द कॉमन सॉल्ट मिक्स इन वाटर, सो वी कैन सी दैट, वी कैन इजीली ऑब्जर्व दैट द कॉमन सॉल्ट कंप्लीटली मिक्स विद वाटर, ठीक है। तो ऐसे कोई सब्सटेंस, ऐसा मिक्सचर है ना, तो मिक्सचर अगर ऐसा बन रहा है जिसमें कि कंप्लीटली मिक्स हो जा रही है कोई चीज, फिर दिखाई नहीं दे रही है, तो ऐसे सारे मिक्सचर्स को हम लोग बोल देते हैं होमोजेनस मिक्सचर, ओके। होमोजेनस मिक्सचर यानी कि अगर आपने शुगर को वाटर में ऐड कर दिया, अगर आपने सॉल्ट को वाटर में ऐड कर दिया, या किसी भी ऐसी चीज को मिक्स कर दिया जो कि कंप्लीटली मिक्स है और फिर वो अलग नहीं हो रही है, मतलब फिजिकली दिख नहीं रहा है, सेपरेट नहीं दिख रहा है, तो ऐसी सारी चीजों को हम लोग बोल देते हैं होमोजेनस मिक्सचर, ओके। ओके, तो होमोजेनस मिक्सचर में एग्जांपल हो जाएंगे सॉल्ट वाटर, शुगर वाटर, कॉपर सल्फेट प्लस वाटर, और भी आपके दिमाग में कई सारे एग्जांपल हैं तो आप ढूंढ सकते हैं। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, हमको भी पता चले क्या है आपका माइंड में क्या चल रहा है। उसके बाद में क्या है कि दूसरे होते हैं हेटेरोजेनस सब्सटेंसेस। हेटेरोजेनस सब्सटेंसेस का मतलब होता है कि ऐसे मिक्सचर जिसमें आपने जो दो चीजें मिक्स की है वो कंप्लीटली मिक्स नहीं हो रही हैं, दे आर एक्चुअली नॉट मिक्सिंग टू ईच अदर, दे आर सेपरेटली सराउंडिंग ऑल ओवर द सॉल्यूशन, ओके। So such type of substances or the mixtures classify as a heterogeneous mixture, okay। उनको हम लोग क्या बोलते हैं, heterogeneous mixture बोलते हैं। अब ये heterogeneous mixture को हम लोग क्लासीफाई कर देते हैं दो टाइप की कैटेगरी में, और क्या बोलते हैं, एक तो कोलाइडल सॉल्यूशन एंड एक सस्पेंशन। कोलाइडल सॉल्यूशन में क्या होता है कि जब आपका कोई ऐसा सॉल्यूशन है, ऐसा मिक्सचर है जिसमें जो दो चीजें मिक्स हैं, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, दीज आर नॉट कंप्लीटली मिक्स टू ईच अदर, बट size of the particle of the colloidal solution is much as compared to the homogeneous solution। तो इसी वजह से क्या होता है कि जो हमारा सॉल्यूशन है उसमें सोल्यूट कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होता है और थोड़ा बहुत इनडिसॉल्व रहता है, तो इस टाइप के सॉल्यूशन को हम लोग बोल देते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ द साइज ऑफ पार्टिकल ये क्लासिफाई किया जाता है। उसके बाद में अगर हम बात करें कोलाइडल सॉल्यूशन के एग्जांपल की, कोलाइडल सॉल्यूशन के एग्जांपल्स में हमारा ब्लड आता है, इमल्शन भी आते हैं,
और मिल्क भी आता है, उसके बाद में चॉक एंड वाटर भी कह सकते हैं। तो ये सारे एग्जांपल्स होते हैं, एग्जांपल्स मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो एग्जांपल्स जो होते हैं वो हेटेरोजेनस के आप कोलाइडल सॉल्यूशन के देख सकते हैं। उसके बाद में आप आ जाइए सस्पेंशन के ऊपर। सस्पेंशन क्या होता है? सस्पेंशन इज एक्चुअली ए टाइप ऑफ द सॉल्यूशन इन विच एनी सब्सटेंस डू नॉट डिसॉल्व और सस्पेंडेड हो जाता है। पूरे सॉल्यूशन में सोल्यूट और सॉल्वेंट का कोई इंटरेक्शन ही नहीं होता है, वो हमेशा मिक्स तो होंगे बट डिसॉल्व नहीं होंगे। कुछ टाइम बाद क्या होते हैं? सेटल डाउन हो जाते हैं। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग बोल देते हैं सस्पेंशन। सस्पेंशन मींस सस्पेंडेड होता है। ओके, एग्जांपल क्या हो जाएगा? कॉमन एग्जांपल ऑफ द सस्पेंशन इज सैंड एंड वाटर मिक्सचर। ओके, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है? टिंडल इफेक्ट की अगर हम बात करें तो टिंडल इफेक्ट इज द scattering of the light when a beam of the light pass through any solution और the environmental condition में भी ये हमने देखा है कि जब बीम ऑफ लाइट किसी मीडियम से पास की जाती है तो बीम ऑफ लाइट डिफरेंट डायरेक्शन में क्या हो जाती है? स्कैटर्ड हो जाती है। सो स्कैटरिंग ऑफ एनी लाइट बीम ऑफ द लाइट इन डिफरेंट डायरेक्शन इज कॉल्ड एज टिंडल इफेक्ट। ठीक है, टिंडल इफेक्ट का मतलब होता है कि जब आपने एक बीम ऑफ लाइट पास की है तो बीम ऑफ लाइट क्या होती है कि डिफरेंट डायरेक्शन में स्कैटर हो जाती है, तो इसको हम लोग बोल देते हैं टिंडल इफेक्ट। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल होता है, ये एक प्रॉपर्टी होती है किसी भी सॉल्यूशन की, किसी भी सॉल्यूशन की ये प्रॉपर्टी है। और ये सॉल्यूशन कौन से हो सकते हैं? ये तो कोलाइडल सॉल्यूशन हो सकते हैं या फिर ये सस्पेंशन हो सकते हैं। ठीक है, तो सस्पेंशन और कोलाइडल सॉल्यूशन दोनों ही क्या करते हैं? टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट की कि ये सारी प्रॉपर्टी यानी प्योर और इम्प्योर सब्सटेंस होने के बाद में हमारे पास जो टॉपिक आता है उसमें आता है टिंडल इफेक्ट हो ही चुका है। नेक्स्ट टॉपिक इज ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन मूवमेंट क्या होता है? ब्राउनियन मूवमेंट ये होता है कि हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन है, कोई भी कोलाइडल सॉल्यूशन है, तो कोलाइडल सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स होते हैं सॉल्यूट के, दे आर मूविंग इन जिगजैग मैनर, मतलब टेढ़े मेढ़े जा रहे हैं, उनका कोई डायरेक्शन नहीं है। सो जिगजैग मूवमेंट ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशन पार्टिकल इट वाज ऑब्जर्व्ड बाय द ब्राउअर्ट ब्राउन, सो दैट व्हाई इट इज नेम्ड एज ब्राउनियन मूवमेंट। ओके, तो ब्राउनियन मूवमेंट का मतलब ये होता है कि कोई भी पार्टिकल जो होते हैं वो जिगजैग मूव करते हैं, तो जिगजैग मूवमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्राउनियन मूवमेंट बोलते हैं। ठीक है, आई होप यू कैन इजीली अंडरस्टैंड व्हाट आई एक्चुअली वांट टू एक्सप्लेन। ठीक है, अच्छी बात है। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं कि नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोगों का नेक्स्ट है हम लोगों का टॉपिक सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होता है? सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है कि हमारे पास कुछ लिक्विड सॉल्वेंट होते हैं। ठीक है, जैसे कि वाटर है, पेट्रोल हो गया, गैसोलीन हो गई, उसके बाद CCl4 हो गया, ये सारे क्या होते हैं? सॉल्वेंट होता है। सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है कि जिसमें कोई चीज मिक्स की जा सके। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में। तो अगर हम किसी सॉल्वेंट में किसी सोल्यूट को मिक्स करते हैं तो उस सोल्यूट का कुछ एक फिक्स अमाउंट ऑफ ही डिसॉल्व हो सकता है। एक कैपेसिटी होती है ना कि इस कैपेसिटी से ज्यादा डिसॉल्व नहीं होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड लैंग्वेज में सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी को अगर मैं डिफाइन करूं तो ऐसे कह सकता हूं द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनी सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट और वी कैन से इन वाटर और वी कैन से इन एनी अदर सॉल्वेंट, सो दिस इज कॉल्ड एज सॉल्युबिलिटी। ओके, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? सॉल्युबिलिटी के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सॉल्युबिलिटी के बारे में हर एक कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी होती है वो अलग होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी जो होती है वो एक टाइप की क्या होती है कि मैक्सिमम लिमिट होती है किसी भी सॉल्यूट की 100 ग्राम सॉल्वेंट में डिसॉल्व करने के लिए। ठीक है, यानी 100 ग्राम सॉल्वेंट में या 100 ग्राम वाटर में मैक्सिमम जितना अमाउंट डिसॉल्व हो सकता है किसी सॉल्यूट का, दैट इज कॉल्ड द सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो अगर हम बात करें शुगर की सॉल्युबिलिटी की, तो शुगर की सॉल्युबिलिटी 204 ग्राम होती है। यानी कि अगर हमारे पास 100 ग्राम वाटर है तो उस 100 ग्राम वाटर में हम मैक्सिमम 204 ग्राम शुगर ही डिसॉल्व कर सकते हैं। तो मैक्सिमम अमाउंट जो डिसॉल्व किया जा सकता है 100 ग्राम में, वही उसकी क्या बोली जाती है? सॉल्युबिलिटी। ऐसे ही पोटेशियम क्लोराइड जो है ना, हम सिर्फ और सिर्फ 34.7 ग्राम ही डिसॉल्व कर सकते हैं। सो सॉल्युबिलिटी ऑफ पोटेशियम क्लोराइड इज 34.7 ग्राम। ओके, तो ये सारी चीजें होती हैं सॉल्युबिलिटी के बारे में। अब क्या होता है कि सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट भी की जाती है न्यूमेरिकल्स के थ्रू। ठीक है, सॉल्युबिलिटी या फिर मास परसेंटेज या वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज या मास परसेंटेज को हम लोग एक डिफरेंट वीडियो बना लेंगे जिसके थ्रू आप देख सकते हैं उसमें कि वॉल्यूम परसेंटेज और मास परसेंटेज को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, आज हम लोग क्या करने वाले हैं? थ्योरेटिकल पोर्शन को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया हमारा सॉल्युबिलिटी। उसके बाद में हम लोगों का नेक्स्ट आता है टॉपिक फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस क्या होते हैं? फिजिकल चेंजेस का मतलब ये होता है कि ऐसे सारे चेंजेस जो किसी सब्सटेंस में होते हैं जिसकी वजह से किसी सब्सटेंस की स्टेट में चेंज आ जाए, कलर में चेंज आ जाए या उसके साइज में चेंज आ जाए, तो ये सारी चीजें होती हैं फिजिकल चेंज। लेकिन इन फिजिकल चेंजेस को रिवर्स किया जा सकता है। ऑल दोज चेंजेस इन विच साइज, डेंसिटी, स्टेट चेंज अकर्स and that can be reversed by the change in temperature, pressure and different external factors. So such type of changes called as physical change. Example जैसे
changing of water into vapor, okay, changing of ice into water, okay, और वी कैन से एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस को हम लोग क्या बोल रहे हैं, फिजिकल चेंज बोल रहे हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे बोर्ड पे लिख दूं, तो इस बोर्ड पे लिखने के बाद मैं इसको इरेज कर सकता हूँ। तो ये जो चेंजेस हो रहे हैं बोर्ड पे, ये क्या है, फिजिकल चेंज है, क्योंकि ये हट सकता है। ऐसा तो है नहीं कि लिखा रहेगा यहाँ से छूटेगा नहीं, ठीक है, छूट जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये क्या हो रहा है, फिजिकल चेंज हो रहा है। ओके, फिजिकल चेंज के बाद अगर मान लो कि आपने ये मार्कर है, ठीक है, इस मार्कर की कैप को मैंने अलग कर दी, तो ये चेंज हो गया, ठीक है, इसका साइज चेंज हो गया। उसके बाद मैं इसको वापस से जोड़ सकता हूँ। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो चेंज हो रहा है वो क्या है, फिजिकल चेंज है, ठीक है। उसके बाद दूसरे होते हैं केमिकल चेंज। केमिकल चेंजेस आर दो चेंजेस इन विच एनी सब्सटेंसेस कन्वर्टेड इनटू डिफरेंट सब्सटेंस बाय द केमिकल रिएक्शन एंड दैट कैन नॉट बी रिवर्स। सच टाइप ऑफ चेंजेस कॉल्ड एज केमिकल चेंज। जैसे कि कोई भी एक ऐसे चेंजेस हो रहा है जिसमें कि कोई नई स्पीसीज बन रही है, तो उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, केमिकल चेंज बोल रहे हैं। जैसे कि आपने किसी भी चीज को जला दिया, तो बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस, ठीक है, बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस इज अ केमिकल चेंज। कर्डलिंग ऑफ मिल्क, ठीक है, दूध से दही बनना, ये भी क्या है, केमिकल चेंज है। स्पॉइलिंग ऑफ फूड, खाना खराब हो जाना, ये भी क्या है, केमिकल चेंज है, ठीक है। बर्निंग ऑफ पेपर इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज आपको अच्छे तरीके से आता है, ये भी आपने 8th क्लास में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो कुछ चीजें आपने 8th क्लास में पढ़ी हैं, कुछ चीजें 8th क्लास से यहाँ पे नहीं सीखी है। तो अब क्या है कि हमारे पास में एक दो टॉपिक बचे हुए हैं। ये एक दो टॉपिक में हमारा एक तो आता है कैलकुलेशन ऑफ द मास परसेंटेज ऑफ द वॉल्यूम, कैलकुलेशन ऑफ द मास परसेंटेज एंड द वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। और दूसरा एक दो टॉपिक शायद अब मेरे ख्याल से कोई रह नहीं है, सारे ही टॉपिक मैंने यहाँ पे कवर कर लिए। तो इस तरीके से हमको क्या करना है, ये चैप्टर 20 मिनट में क्या हो गया, कवर अप हो चुका है। तो आप लोग इसको एक बार देख लीजिएगा और अपनी लैंग्वेज अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, तो ये पूरी तरीके से चैप्टर आपके चैप्टर जो कंप्लीट हो जाएगा। इसके नेक्स्ट जो लेक्चर बनेगा इसी चैप्टर का बनेगा, और उसके लिए मैं सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड विद अस।